Good morning, students. My voice is audible? Yes, beta. And slides are visible to you? Yes, please. Siddharth, Achal. Okay. Now see, in the last class, we finished with the NMOS and CMOS designing. I'm just recalling for a while, like in a CMOS logic circuitry, we have three kind of switches. That is NMOS, PMOS, and CMOS. So for MOS transistor, one thing, foremost thing that you keep in a mind, that is one is for the high voltage, and normally we can denote it by 1.5 or 15, or by the power or PWR or VDD. Whereas the low voltage or a zero, that is going to be set for the ground, that is GROUND, GND, or VSS. Fine. For the NMOS switch, this is going to be the symbol, that is source, drain, and gate, and this. And as far as NMOS inverter is going to concern, how this act as a switch is going to be like this. जब भी हमारे NMOS में हम 0 देंगे, it is going to act as an open circuit. When we give 1, it is going to act as a short circuit. So this when the circuit is open, so whatever my input, it is not going to move to the output. That is this case, and a short circuit, whatever input I am giving, it is forming the closed loop and it is giving. Fine. Same with the PMOS. यहाँ मैंने कल भी कहा था that one bubble is missing in the diagram. Bubble should be there. ठीक है? So that is going to be there. And these are just vice versa operation for the PMOS. This is a symbol for CMOS switch. I can use this. P नहीं आएगा, यहाँ C आएगा. I can use this one also and that one. Fine. And an inverter, whether it is NMOS, PMOS, or CMOS, whatever it is going to be, this is a inverter. Fine. And then I explain you the NMOS NAND gate circuit designing. Have you drawn this? कल बना लिया था क्या तुम लोगों ने? सिद्धार्थ, आंचल, वंदना, ये क्लियर हो गया था तुम लोगों को NMOS का? यस मैम। ना, एक तो एंड गेट और एक और गेट डिजाइनिंग था. तो ये नैंड गेट हो गया मेरा. इसके आगे एक और हम इन्वर्टर लगाएंगे. दीज बोथ आर द एनहांसमेंट एंड दिस इज अ डिफ्यूजन. Very rare chances to be asked for the NMOS or PMOS designing. Maximum time they just ask for the CMOS circuit designing or the transmission gate design. And if I connect one inverter ahead this is going to be AND. Fine. Similar like this. एक ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी है. सी whenever I am connecting my two MOSes in a series, they will perform AND operation, and whenever I connect them in a parallel means what? In this manner it is going to perform OR operation, means addition. So अगर हमें NOR गेट की बात करूं तो ये दोनों सीरीज की बजाय कैसे हो जाएंगे? It will be on a parallel, like A plus B का बार. And one inverter, if I put it here, then it is going to give you A plus B. Okay? That was all about this. Fine. Now we are starting the CMOS. CMOS inverter NAND gate designing जो है, it is slightly different. Not different. Basically, in this particular circuitry, what you do, two or three things that is very important that you need to keep in a mind. First thing is whatever operation like NAND gate here. So what I want is A B ka bar. Please listen me very carefully. That is very important. First thing, in a both NMOS and PMOS, the output should come like this. And what happens? Whatever input I am give to the NMOS side, that operation take place and output में बार लग के ही आता है. So A और ये B है suppose, so A B output will coming A bar B bar. Same, ये तो clear तुम्हें NMOS में पहले ही हो गया था. For the case of the PMOS, what is going to be happen when I am giving A,
यहाँ पर ये ए नहीं आता है, ये क्या हो जाता है इसके बाद ए बार, यहाँ पर भी बी गया तो ये बबल से ये क्या हो गया बी बार, प्लस ये पैरेलल ऑपरेशन है, ये है नहीं हमने किया है क्योंकि हमें आउटपुट में ये चाहिए, बट अगर इस ऑपरेशन को मैं एग्जीक्यूट करूं पीमॉस से, सो व्हाट आई एम गेटिंग, और पीमॉस में इन्वर्ट होकर आउटपुट नहीं मिलेगा, ए बार प्लस बी बार. Fine, this will be the output from PMOS side. And whenever you are performing any circuitry in a CMOS, you need to execute and show the justification. This is my NMOS output, this is my PMOS output. So A bar plus B bar. So De Morgan apply करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा AB का bar. What my De Morgan says. That is why I put in the lab pre-labs De Morgan's theorem and all, just to recall you the second year content. De Morgan says whatever is a operation that get just reverse और individual बार जो है वो common बार में आ जाता है या उसका भी invert हो जाता है, ठीक है. So that is all about this. Now please draw this. This is your NAND gate designing using CMOS inverter. Sometimes such a easy question to be asked for the 8 marks question. In the RTU examination, I saw your papers. So if you know a little bit logic, it is going to be very easy. And see, अगर सेम में ही अगर हमें एंड गेट बोल देंगे तो क्या होगा, there is no issue in that. What I will do, whatever is my output, I will connect this output to one more मतलब कुल मिला के ये P हो गया तुम्हारा, ये N हो गया, इसमें हम इस तरह से, और ये ग्राउंड वगैरह. इट्स वेरी बिट डिफिकल्ट टू यूज दिस पेन, ठीक है. तो ये एंड गेट हो जाएगा, बट अभी तुम पहले नैंड गेट का ही बना, ठीक है. मेक इट फास्ट. Have you completed? फाइन. ये इसी का एक्सप्लेनेशन दिया है. पुल अप ट्री इज पैरेलल कनेक्शन ऑफ पी स्विच, one end connected to the VDD and other end connected to the NAND gate output, and combined state of the output depends on the combination of the pull up to pull down. And second, this is a NOR gate. NOR gate में मुझे क्या चाहिए रहता है, that A plus B का बार. सो सी, यहाँ हमने वो सीरीज कॉम्बिनेशन को NMOS में पैरेलल में कर दिया,
and whatever when I see the output it gets invert. And यहाँ पर हमने अब ऊपर जो मतलब ये हमेशा मैक्सिमम टाइम यही होगा, whatever ऑपरेशन हम किसी भी इक्वेशन को एग्जीक्यूट करने में करेंगे, सो नीचे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ऊपर सीरीज हो जाएगा, और ऊपर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वो पैरेलल हो जाएगा. So here what but you things you need to justify. Here what I am getting at the PMOS terminal is A bar or B bar. So again we will apply the De Morgan's and what we will get? A plus B का बार. ठीक है, that is the NOR gate. Fine, बना लो इसको. इसी तरह से बाकी भी सर्किट्स है. ग्रेजुअली वी विल सी हाउ मच वी डू कंप्लीट टुडे एंड लेटर ऑन. अभी यू जस्ट कंसीडर हमारी आधी यूनिट भी नहीं हुई है, थर्ड यूनिट. दैट इज व्हाई आई डिडंट टेक इट इमीडिएटली, आई टुक आफ्टर फोर्थ लास्ट वीक. हो गया बेटा? ओके, नाउ सी, एक तो ये तरीका है, इससे हम बना सकते हैं. अनदर वे ये है, मॉसेस के थ्रू अगर तुम बनाते हो तो ये भी वही सेम है. पी या एन लिख के ब्लॉक बनाओ और अदरवाइज मॉसेस बना के, बोथ आर करेक्ट. ये मोर नंबर ऑफ सर्किट्स के लिए ए से एन तक, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस टिल एन, एंड हियर इज माई PMOS. ठीक है. Now comes compound gate using CMOS. Compound gate means combination of certain logics together. Means उसमें AND भी है, OR भी है, NOT भी है. Suppose ये है, so इधर क्या हो रहा है? A, B और C, D. यहाँ AND ऑपरेशन हो रहा है, then ORing हो रहा है, फिर इसका इन्वर्ट हो रहा है. So it is AB plus CD का बार. So मेन प्रोग्रामिंग जो होती है वो तो वो NAND और NOR हमारे यूनिवर्सल गेट है. That's why I showed you directly. बाकी तुम्हें एग्जाम में भी बनाना है, so this should be a right approach. Means you need to show examiner 8 मार्क्स हैं, इसमें तुम्हें कुछ थ्योरी नहीं लिखना है. So your main purpose should be justify your efforts that how I am getting my output. So इसमें क्या होगा आउटपुट के लिए particularly कि what I want, पहले तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. So see, ए बी और सी डी को हमने सीरीज में ले लिया, एंड नेचुरली यहाँ और ऑपरेशन है तो हम इसको पैरेलली कनेक्ट कर देंगे. सो दिस इज ए बी एंड सी डी, और यहाँ बीच में प्लस आ गया, तो ए बी प्लस सी डी. फाइन. एंड नेचुरली जब ये आउटपुट में जाएगा तो इन्वर्ट हो जाएगा. फाइन. सेम अब यही चीज मुझे पैरेलल में चाहिए. फाइन. बट थिंग इज दैट कि PMOS में हमारा बबल वाला जो इशू तो नहीं, जो कंसेप्ट है, तो उसमें अब क्या होगा यहाँ पे, सी दैट थिंग्स एंड दिस थिंग यू नीड टू जस्टिफाई इन योर आंसर ऑल्सो. हियर व्हाट आई विल गेट, A plus B means A bar plus B bar. Here I am getting what, C bar plus D bar, और यहाँ ये सीरीज में कंबाइन हो रहा है. तो ये रिजल्ट हमें क्या दे रहा है, मीन्स ये इक्वेशन जो आ रही है ये लिख के वापस ये कैसे आ रहा है, दैट यू नीड टू डिनोट. कई बार स्टूडेंट कहते हैं सबसे किया, हाउ माई मार्क्स गोइंग टू कट इवन इन द मिड टर्म ऑल्सो, एंड बी रेडी फॉर वन क्वेश्चन इन द मिड टर्म ऑल्सो फॉर CMOS डिजाइनिंग. इट इज फॉर श्योर, इट इज इन द, इट विल कम इन सेकेंड मिड टर्म. ठीक है. ये इसका प्रेडिक्शन ये है, इसका तो डायरेक्टली यही आ रहा है, बट इसका प्रेडिक्शन ये है. सो नाउ हाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इन दोनों में ही डी मॉर्गन्स लगाएंगे. सो व्हाट रिजल्ट इज गोइंग टू बी देयर, ए बी का बार, दिस इज माय वन थिंग, एंड हियर व्हाट इज गोइंग टू बी कम्स आउट टू बी
सी डी का बार. फाइन. ए बार प्लस बी बार का डिमॉर्गन्स क्या होगा? ए बी का बार एंड दिस. नाउ अगेन विल अप्लाई, और ये एडिशन जो था वो मल्टीप्लीकेशन में गया. हमने इंडिविजुअली दोनों में लगाया. अब वी आर सीइंग इज एज कंबाइनली. सो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर? यहाँ प्लस साइन आ जाएगा और एक और इन्वर्टर आ जाएगा. तो उस इन्वर्टर में क्या होगा? दिस बोथ थिंग्स इज आर गोइंग टू बी ऑमिट. डायरेक्टली करो या ऐसे भी, मतलब ये रिवर्स हो जाएंगे. सो दैट इज गोइंग टू गिव मी व्हाट? ए बी प्लस सी डी का बार. दैट्स इट. इज इट क्लियर? तो पहले ये सर्किट इस तरह से बनाना है तुम्हें. बट यार सबको पहले ये लिख लो, क्योंकि ये सेम थिंग नेक्स्ट स्लाइड में मैं वापस बनाऊंगी नहीं. बट यही है कि इससे हमें ये मिल रहा है. देन फर्स्ट वी अप्लाई इंडिविजुअली डिमॉर्गन्स एंड आफ्टर दैट दिस इज गोइंग. अब हम इसको इंडिविजुअली बना के अब कंबाइंडली मर्ज कर देंगे. तो पी मास ऊपर आ जाएगा और एन मास नीचे आ जाएगा. ये लिख लो. आई एम गिविंग यू 1 minute, देन यू डू. Fine. So finally my output is going to be like this. So this is my compound gate designing using CMOS of A dot B plus. इस तरह के मैंने 4-5 क्वेश्चन असाइनमेंट में भी दिए हैं. आई एम जस्ट वेटिंग लाइक फॉर दिस यूनिट टू बी फिनिश, क्योंकि मैंने 4th यूनिट के तो एक आध क्वेश्चन ही दिया है उस असाइनमेंट. बट अभी तुम्हारा लंबा सेमेस्टर चलना है टिल दिसंबर. सो आई एम ऑल्सो रिलैक्स. आई विल गिव यू आफ्टर, जैसे तुम्हारा फर्स्ट मिड टर्म हो जाएगा उसके बाद देती हूँ. आरटीयू पे डेट आई क्या एग्जाम्स की? क्यों मनदीप? सिद्धार्थ नहीं पता मैम. अभी नहीं पता तो ठीक है. एक बार वेबसाइट को रेगुलरली चेक करो. और मतलब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से तो आ गया है ना कि एग्जाम्स होंगे 3rd week ऑफ दिस सितंबर ना. और सभी के होने हैं शायद. तुम सबके ही होने हैं ना शायद. फाइनल ईयर के अलावा भी सबके होने हैं ना. देखना, और अगर आ जाता है तो प्लीज लेट मी नो. ठीक है. फाइन. कंपाउंड गेट हो गया. ये नेक्स्ट एग्जाम्पल Yes, है ma'am. कंपाउंड गेट का. दिस वन. नाउ अनदर एग्जाम्पल फॉर अ कंपाउंड गेट. मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, बाकी के 4-5 मैंने असाइनमेंट में भी दिए हैं. दिस आर मोर देन सफिशिएंट आई फील. नाउ हियर दिस एग्जाम्पल इज, यहाँ पर जो है क्वेश्चन वो ये है. एफ जो है दैट इज व्हाट? ए बी सी. ये सॉरी पैरेलल में है तीनों. तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों ऐसे, और फिर मल्टीप्लाई में है डी और इसका बार. सो हमें जो निकालना है दैट इज दिस. ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय डी बार. फाइन. आई एम सॉरी ये कैपिटल हो गया, ये स्मॉल यू मैनेज. बट अवर इक्वेशन विच वी वांट इज दिस. ठीक है. ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय डी. सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, पर्टिकुलरली हम इसमें 3 जो ए बी सी है इनको हम पैरेलल में लेंगे और फिर डी को इसमें सीरीज में कनेक्ट करेंगे. तो यहाँ का तो ये एफ आ जाएगा. नाउ वी नीड टू चेक अबव ऑल्सो. ऑलवेज यू कैन नॉट डू रैंडमनेस कि यहाँ जो सीरीज में है उसको मैं पैरेलल में ले लूंगा या जो पैरेलल में है उसको सीरीज में ले लूंगा एंड ऑटोमेटिकली रिजल्ट विल कम. नो, यू नीड टू जस्टिफाई. सी हियर इट इज ए बार बी बार सी बार, और ये प्लस होके यहाँ पे क्या आ रहा है? डी. यहाँ पे ये जो चीज है ये डी है. वन बबल इज ऑल्सो मिसिंग. सो पीमॉस में मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है? That is A bar, B bar, C bar plus D bar. ठीक है. फाइन. सो
First of all, what I will do, same thing which we applied. First of all, I will apply De Morgan's only in these three. So what it is going to become A plus B plus C और इसका बार. ठीक है, ये प्लस मैं एज इट इज ऐसे ही रहने दूंगी. एंड डी जो एज यूजुअल है, डी बार ऑल्सो इज गोइंग टू बी लाइक दैट. आफ्टर दैट व्हेन आई विल अप्लाई नेक्स्ट डी मॉर्गन, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक द सेम. ये चीज ऐसी रहेगी, ये प्लस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दोनों का बार हट के एक कॉमन बार आ जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ नोट डाउन दिस इक्वेशन ऑल्सो एंड दिस सर्किट ऑल्सो. सो दिस अवर कंप्लीट. अभी अपन ने क्या क्या किया, पहले हमने सीमॉस से नॉर और नैंड गेट बनाया और कंपाउंड गेट. इसके आगे का अब अपन नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लेक्सर है, तुम्हारे सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइनिंग भी है, दैट विल डू. और लेट मी सी, एक बार तुम ये बना लो, पहले ये इक्वेशन लिख लो. आई एम गिविंग यू चांस फॉर राइटिंग डाउन दिस. एक बार ये होने के बाद फिर देखते हैं. हुआ तो मल्टीप्लेक्सर में करा दूंगी. इक्वेशंस लिख ली. ओके, अब ये सर्किट ऐसे बना लो. सॉरी, सी देर इज अ स्लाइट, मतलब ये एक्चुअली स्टूडेंट ने अपने हाथ से बनाया था, तो ये पर्टिकुलरली थोड़ा सा इसमें ये है कि यहाँ बबल और ये डी आएगा और नीचे ये तुम्हारा सी है. इतना कर लो, है ना. नो नीड टू मेक दिस ट्रुथ टेबल. इतना मतलब मैं इसके थ्रू नहीं एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट कंफ्यूज. सो बेटर ऑप्शन इज जस्ट टू मेक, एंड द टर्मिनोलॉजी जो मैं तुम्हें मैथमेटिक्स बता रही हूँ उससे करो, दैट इज फाइन. नाउ जस्ट मेक इट एंड लेट मी नो व्हेन यू कंप्लीट.
completed? Now next is multiplexer designing. To input multiplexer. चलो ये छोटा सा ही टॉपिक है, ये कर लेते हैं. So that from next class, which will be on a Monday, we'll start with the memory latches and register. That is also very important topic बेटा, ठीक है. टू इनपुट मार्क्स में कुछ नहीं है. एक और तरीके से जो सिंबल था लाइक सीमॉस को अगर हम डिजाइन करें तो ये इस तरह से रहता है, इनपुट आउटपुट और ये तुम्हारा स्विच मतलब जो गेट रहता है. सो ये रहा हमारा फाइन, और ये स्विच हमने दे दिया, और बी में ये एस बार अपन माइनस एस दे दिया. तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ए एस प्लस बी बार बी एस बार. क्या आउटपुट में मिल रहा है यहाँ पे, ए एस प्लस बी एस बार. सो दैट इज द थिंग वी आर एक्सपेक्टिंग कि जब S1 होगा तो A आ जाएगा, जब S0 होगा तो B आ जाएगा. फाइन. So from this topic, memory latches and register will start in the next week. Hopefully CMOS ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन लेआउट वाला पार्ट करेंगे. ठीक है. And join within after 5 minutes for the SE class ना. ठीक है. Yes बेटा, please give attendance. आंचल, मनदीप, शिवांगी, सिद्धार्थ, शिवांगी प्रेजेंट मैम. वंदना, वंदना प्रेजेंट. okay. Now currently it is 11:30. 11:35 या 40 पे ज्वाइन कर लो, 11:40 पे कर लो. चलो ठीक है, फॉर ऐसी. ओके बेटा.